If n small drops combines to form a big drop. If n small drops combines to form a big drop, then if terminal velocity of small drop in a viscous medium is v, what will be the terminal velocity of big drop? What will be the terminal velocity of the big drop? हमारे को एक बेसिक फॉर्मूला पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी इन विस्कस मीडियम टू बाय 9 r square rho minus sigma g by eta. This is the terminal velocity in a viscous medium. अब हमारे को दिया है that हमने n small drops को combine करके big drop बनाई है. Basically जो factors change नहीं कर रहे, ये जो factors हैं, small drop है, big drop है, ये तो same ही रहेंगे. Rho minus sigma same है, rho density of medium है, sorry density of drop है, sigma density of medium है, eta viscosity है. So ये सब चेंज नहीं कर रहे. चेंज बेसिकली क्या कि स्मॉल ड्रॉप है या बिग ड्रॉप है तो रेडियस बदल गया. तो हम इस फॉर्मूला में बेसिकली कह सकते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है, अगर बाकी फैक्टर सेम रहते हैं तो इट्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. अब अगर स्मॉल ड्रॉप का रेडियस आर है, एन ड्रॉप्स कंबाइंस टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, तो हम किसको इक्वेट करें? एन छोटी ड्रॉप्स ने मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई, तो हम कौन सी क्वांटिटी इक्वेट कर दें? हम कह सकते हैं कि जो n स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा वही एक बिग ड्रॉप का होगा. So volume of n small drops will be equals to volume of one big drop. We say that as n small drops combines to form a big drop, we can say volume of one big drop. Big drop का वॉल्यूम अगर मैं लेता हूँ 4/3 pi r cube, this should be equals to n times volume of small drops. So what you get is that r cube is proportional to n r cube, or r is equals to n raised to power 1/3 into small r. हमारे पास ये रिलेशन है v proportional to r square. So terminal velocity of big drop upon terminal velocity of small drop. This is radius of big drop square upon radius of small drop का square. और big drop का radius है n raised to power 1/3 radius of small drop. क्या बच गया? n raised to power 2/3. तो last time आपको यही फॉर्मूला लिखाया था कि terminal velocity of big drop is n raised to power 2/3 times terminal velocity of small drop. MCQs में डायरेक्ट काम आएगा तो आप इसको यूज कर सकते हो, याद रख सकते हो इस फॉर्मूला को कि terminal velocity of big drop is n raised to power 2/3 times the terminal velocity of small drop. क्लियर सबको? डाउट है तो पूछो, इसमें कुछ नहीं आया समझ तो. पूरे कंसेप्ट में कुछ नहीं आ रहा समझ तो. Then you write next. Sorry. A body falls through viscous medium. A body falls through viscous medium of coefficient of viscosity eta. Body falls through viscous medium of coefficient of viscosity eta and density sigma.
if density of body is rho and average acceleration is, if density of body is rho and average acceleration is half of the initial acceleration, show that time taken to achieve terminal velocity, is independent of the density of the medium. Time taken to achieve terminal velocity is independent of the density of the medium. So हमें दिया है कि एक बॉडी फॉल कर रही है विस्कस मीडियम में, उसकी जो एवरेज एक्सेलरेशन है दैट इज हाफ ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन. तो टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करने का जो टाइम होगा दैट शुड नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ द मीडियम. अगर मेरे पास कोई भी बॉडी है विच इज फॉलिंग थ्रू विस्कस मीडियम, मैं आपसे पूछूं जब ये बॉडी फॉल करना शुरू करेगी, एट द इंस्टेंट व्हेन इट बिगिंस टू फॉल, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? व्हेन इट बिगिंस टू फॉल, weight downward, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स. दूसरी फोर्स अपथ्रस्ट. इनिशियली कौन सी फोर्स नहीं लग रही? विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा वी, बिकॉज इनिशियली v0 है. इनिशियली बॉडी की कोई स्पीड नहीं है, तो इनिशियली कोई विस्कस फोर्स नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है. जब ये फॉल करना शुरू की, तो इनिशियली मैं कह सकता हूं कि बॉडी पे जब ये फॉल करना शुरू करेगी सिर्फ दो फोर्सेस लग रही हैं. एक तो लग रहा है वेट, और वेट का फॉर्मूला फोर बाय थ्री पाया क्यूब रो जी, वी रो जी. और अब थ्रस्ट कितनी? नेट फोर्स डाउनवर्ड्स. तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी? नेट फोर्स कितनी है? 4 बाय 3 पाया क्यूब रो जी माइनस 4 बाय 3 पाया क्यूब सिग्मा जी and divided by mass of the body. Acceleration is net force over mass. So net force है weight minus upthrust, mass is 4 by 3 pi r cube rho. So वहां से हमारे पास initial acceleration आ गई. अब जैसे जैसे नीचे जाएगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. वेलोसिटी बढ़ रही है तो कौन सी फोर्स बढ़ेगी? विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स बढ़ेगी और एक स्टेज आएगी जब विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट मिला के वेट को बैलेंस कर देंगे. उस केस में एक्सेलरेशन जीरो. तो हमें यही क्वेश्चन में दिया था. इनिशियल एक्सेलरेशन ए है, फाइनल एक्सेलरेशन 0 है, तो एवरेज इज a/2. तो क्वेश्चन में यही दिया है कि एवरेज एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन. तो हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे. फिर टाइम टेकन टू अचीव टर्मिनल वेलोसिटी, टाइम का फॉर्मूला v माइनस u बाय a. टर्मिनल वेलोसिटी हमें पता है 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g बाय ईटा. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड यू कैन फाइंड द टाइम. सो कंसेप्ट लिखो पहले, फिर इसको सॉल्व करते हैं. एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, गलत कराऊंगा बिकॉज गलत से ही आंसर आएगा. एनसीईआरटी वाला ठीक से आंसर नहीं आएगा. गलत मैंने इसमें क्या बताया अगर आप ध्यान से सोचो तो? टाइम के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? v minus u by t. और ये कब लगता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट. जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो. यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है. पर क्योंकि एनसीईआरटी ने हमें कहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन इज हाफ, मतलब दे वांट अस टू कैलकुलेट यूजिंग एवरेज एक्सेलरेशन, उसको कांस्टेंट मान के. तो अगर मैं उसको कांस्टेंट मान के कि एवरेज एक्सेलरेशन से ही सॉल्व करूंगा तो बुक वाला आंसर आएगा.
Otherwise, we already know कि v minus u by a can only be used if a is constant. तो आपके दिमाग में घर जाके बाद में डाउट आए जब दोबारा देखो, तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें a कांस्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं यूज कर रहा हूँ बिकॉज एनसीईआरटी ने ऐसे ही करने के लिए कहा है. कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है कि बच्चे चैलेंज कर देंगे कि ये तो कांस्टेंट नहीं था, ये इक्वेशन कैसे यूज की. सो इसलिए हम इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे, जैसे एनसीईआरटी चाहती है वैसे कर देंगे आंसर निकालने के लिए. सो यू कैन राइट इनिशियली व्हेन द बॉडी इज ड्रॉप्ड इन अ मीडियम. Initially, when the body is dropped in a medium, the two forces acting on the body are the weight acting downwards and the upthrust acting upward. Thus, net downward force acting on the body is this acceleration या initial acceleration, because acceleration change करेगी. There is initial acceleration, rho minus sigma g by rho. As the body increases its speed, as the body increases the speed, viscous force acting on the body increases. As the body increases its speed, viscous force acting on the body increases. Viscous force acting on the body increases. And a stage is reached where the body acquires terminal velocity. And a stage is reached where the body acquires terminal velocity and acceleration reduces to zero. And acceleration reduces to zero. Thus, average acceleration is इसका हाफ, मतलब हाफ सर एक्सीलरेशन इज 0 के बाद क्या था? उसके बाद फिर ये लिखना है, thus average acceleration is v minus u by a, और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ये टाइम आ गया, तो रो माइनस सिग्मा जी कैंसिल हो गया, सो 4/9 r square rho by eta, and this is not dependent on density of the medium.
सो यही प्रूफ करना था, टाइम टू एक्वायर टर्मिनल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन सिग्मा. Time taken to acquire terminal velocity does not depend on sigma. कर लिया नोट? Next is the topic of streamline and streamline flow. मैं जब शुरू में टर्मिनल वेलोसिटी ड्राइव कर रहा तो मैंने एक बड़ी टर्म यूज की थी, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड. स्ट्रीमलाइन फ्लो को अब हम डिटेल में करेंगे, स्ट्रीमलाइंस की प्रॉपर्टीज करेंगे. अगर आपको आए स्ट्रीमलाइन और स्ट्रीमलाइन फ्लो तो ये दो अलग चीजें हैं. अगर सिर्फ स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन आती है तो हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन इज इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन पेपर such that tangent to it at any point gives us the direction of fluid velocity. मतलब कि अगर मैंने कोई स्ट्रीमलाइन ऐसे ड्रॉ की है पेपर पे लिक्विड फ्लो रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, जैसे मैंने 3 पॉइंट लिए ए बी एंड सी और इन तीनों पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ किए, तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी. ये तो स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन होगी कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी बताएगा. तो स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं, द फ्लो इन विच द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट एनी पॉइंट, मान लो A, velocity of fluid particle at any point is same as that of its preceding particle. मतलब कि जो भी पार्टिकल A से पास कर रहा है उसकी वेलोसिटी वही होगी जो इससे पहले पास करने वाले पार्टिकल की थी. तो बेसिकली मतलब ये हुआ कि A से जो भी पार्टिकल पास करेगा उसकी सेम वेलोसिटी, B से जो पास करेगा उसकी सेम वेलोसिटी, C से जो पास करेगा सेम वेलोसिटी. A, B और C पे वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है. मैं ये नहीं कह रहा कि इन तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, बिकॉज देख के ही नजर आ रहा है कि डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है. सिर्फ ये है कि जो भी A से पास करेगा उसकी वेलोसिटी V है, वैसे से वेलोसिटी V है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम. B से जो पास करेगा, हर पार्टिकल जो B से पास करेगा उसकी वेलोसिटी V भी, C से पास करने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी VC, तब मैं कह सकता हूं कि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है. नॉर्मल कंसेप्ट ये होता है कि जब रिवर कोई भी फ्लो, वाटर, रिवर, कोई भी अगर नॉर्मल फ्लो है लिक्विड का, किसी ट्यूब में, सड़क पे, रिवर में फ्लो ऑफ लिक्विड है, स्मॉल वेलोसिटीज पे फ्लो स्ट्रीमलाइन ही होता है. पर जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आएगी जहां पे स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो टर्बुलेंट में चेंज हो जाएगा. तो टर्बुलेंट मतलब जो स्ट्रीमलाइन नहीं है. और स्ट्रीमलाइन कब नहीं है? अगर A से पास करने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट है. पहला पार्टिकल जब A से पास किया तो वेलोसिटी थी मान लो 5J, अगला क्रॉस किया तो 6K, नेक्स्ट आया तो 7I. तो हर बारी जब A से पास करने वाले वेलोसिटी अलग हो जाएगी तो हम उसको बोल देंगे इट्स अ टर्बुलेंट फ्लो, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, बदलती जा रही है. तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट में चेंज हो जाता है. जिस वेलोसिटी पे स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट में चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी. तो आप कह सकते हो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी है तो टर्बुलेंट फ्लो. तो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट दो फ्लो हो सकते हैं. स्ट्रीमलाइंस की प्रॉपर्टी अगर आपको है कि इमेजिनरी लाइंस की, तो पहला जो क्वेश्चन आपको आता है कि टू स्ट्रीमलाइंस शुड नेवर इंटरसेक्ट. दो स्ट्रीमलाइन स्टेडी फ्लो में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. रीजन बीइंग, अगर मैं दो स्ट्रीमलाइंस बनाता हूं
तो अगर मैं इस पॉइंट पर डायरेक्शन पूछूं, इसके लिए टेंजेंट इधर बन जाएगा और दूसरी स्ट्रीमलाइन के लिए टेंजेंट इधर बन जाएगा। पर एक पॉइंट पे फ्लूइड की डायरेक्शन तो एक ही हो सकती है। यू कैनॉट हैव लिक्विड मूविंग इन टू डायरेक्शंस एट वन पॉइंट। मतलब ये हमारा स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। स्ट्रीमलाइन से बहुत कुछ पता चला करेगा हमें। अगर मैंने स्ट्रीमलाइंस को क्लोजली स्पेस्ड बनाया, और दूसरे केस में स्ट्रीमलाइंस में डिस्टेंस को ज्यादा रखा, distance between streamlines is the measure of rate of fluid flow. Rate of fluid flow मतलब volume of liquid flowing per second, fluid flowing per second. अगर वो ज्यादा है तो streamlines को पास पास बना देते हैं, अगर वो कम है तो दूर बना देते हैं। वेलोसिटी प्रोफाइल बनाना हो जब, कि अगर मेरे को वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड शो करना है किसी डायग्राम में, तो लेंथ ऑफ स्ट्रीमलाइन इज द मेजर ऑफ वेलोसिटी। अब स्ट्रीमलाइन जितनी बड़ी बना दोगे उसका मतलब उतनी ज्यादा वेलोसिटी है। जैसे वेलोसिटी प्रोफाइल में रिवर का बनाऊं विद डेप्थ, डेप्थ के साथ वेलोसिटी बढ़ती है कम होती है? डेप्थ के साथ वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी? जैसे जैसे रिवर में नीचे जाते हैं कम होती है। तो जब हम वेलोसिटी प्रोफाइल बनाते हैं रिवर का, वो ऐसे बनेगा कि सरफेस पे ज्यादा, जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं ये वेलोसिटी कम होती जा रही है। इस पे क्वेश्चन भी आता है, स्टिल वाटर रन्स डीप। स्टिल वाटर रन्स डीप मतलब जैसे जैसे डेप्थ होगी तो स्पीड कम होती जाएगी, और सरफेस पे नॉर्मली लिक्विड रेस्ट पे होता है। जैसे आपने डिस्कवरी चैनल में कई बार देखा होगा, जो वो सी डाइविंग दिखाते हैं या नीचे की एक्वेटिक लाइफ दिखानी है, जब वो सी के बेड पे चले जाते हैं तो वहां पे नॉर्मली रुका होता है पानी, ऑलमोस्ट रेस्ट पे होता है, बिकॉज वो कंसेप्ट अभी आगे आएगा प्रेशर के कारण। बट डेप्थ के साथ वो वेलोसिटी जो है वो कम होती रहती है। समझ में आया स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट क्या होता है? सो स्ट्रीमलाइन फ्लो को अगर मेरे को स्ट्रीमलाइन को डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूं? इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन पेपर, टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी। स्ट्रीमलाइन फ्लो, the flow in which at one particular point all the particles passing should have the same velocity, or velocity of any particle passing through a particular point is same as that of the preceding particle. स्ट्रीमलाइन नहीं है तो टर्बुलेंट है। हम लेंगे कि वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जाके स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट में चेंज होगा। जिस वेलोसिटी पे जाके स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट में चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे अभी इसके बाद ही। और properties of streamline, two streamlines should never intersect each other. यूनिफॉर्म फ्लो अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। whenever you have to depict a uniform flow of liquid, we say the streamline should be straight, parallel, equidistant, इस तरह का। फीड लाइन should be straight, parallel, equidistant, because straight नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब जैसे मैंने ऊपर जो बनाई थी स्ट्रेट नहीं बनाई थी, जो ऊपर बनाई थी वो स्ट्रेट नहीं बनाई थी। इस केस में डायरेक्शन अलग अलग है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सो अगर मैं यूनिफॉर्म नहीं बनाता तो इसका मतलब है कि फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं बनाता स्ट्रीमलाइंस को, तो इसका मतलब डायरेक्शन बदल रही है। अगर मैं इक्विडिस्टेंट नहीं बनाता तो मतलब कहीं पे फ्लो ज्यादा है कहीं पे कम है। सो हम ले रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म फ्लो को रिप्रेजेंट करना है तो स्ट्रीमलाइन शुड बी स्ट्रेट, पैरेलल, इक्विडिस्टेंट, तीन प्रॉपर्टीज। सो यू कैन राइट फर्स्ट स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, हेडिंग डाल लो streamline and turbulent flow. Streamline and turbulent flow. So you can write flow of liquid is said to be, flow of liquid is said to be streamline. Flow of liquid is said to be streamline if velocity of fluid particle passing through
velocity of fluid particle passing through a particular point. Velocity of fluid particle passing through a particular point is same as that of its preceding particle. Is same as that of its preceding particle. At low velocities, flow of liquid is generally streamlined. At low velocities, flow of liquid is streamlined. If we increase the velocity of fluid in any given cross section, if we increase the velocity of fluid in any given cross section, then at one particular velocity called critical velocity, streamline flow changes into turbulent flow. So last line repeat कर दो. If we increase the velocity of fluid flow at one particular velocity called critical velocity, streamline flow changes into a turbulent flow. That is, the velocity of different fluid particles passing through the same point will be different. Velocity of different fluid particle passing through a particular point is different. Next सिर्फ हेडिंग डालो स्ट्रीम लाइंस. पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो लिखा था, अब स्ट्रीम लाइंस. Streamlines are imaginary lines drawn on paper. Imaginary lines drawn on paper such that tangent to them at any point, such that tangent to them at any point gives us the direction of fluid velocity at that point. Tangent to them at any point gives us the direction of fluid velocity at that point. Tangent to them at any point gives us the direction of fluid velocity at that point.
जो फर्स्ट डायग्राम है वो बना लो, ABC जो पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं. And then you write as shown in figure. As shown in figure. If a curved streamline is drawn, then velocity of all the particles passing through A. Velocity of all the particles passing through A is VA. Velocity of all the particles passing through B is VB, and so on. At different points, velocity can be same or different. जरूरी नहीं है सेम हो, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है. एक पॉइंट पे एक ही होनी चाहिए. At different points, velocity can be same or different. Points में लिखो इसके नीचे. First point is two streamlines should never intersect. Two streamlines should never intersect in a steady flow. Two streamlines should never intersect in steady flow. Otherwise, at the point of intersection, there are two directions of fluid velocity, which is never possible. There are two directions of fluid velocity, which is never possible. अदरवाइज के बाद रिपीट करना. At the point of intersection, there are two directions of fluid velocity, which is never possible. Next point. Uniform flow is represented by field lines which are straight, parallel, sorry, field lines and streamlines which are straight, parallel and equidistant. Uniform flow is represented by streamlines which are straight, parallel and equidistant. If the next point, if the streamlines are closely spaced, if the streamlines are closely spaced, it signifies that rate of flow of liquid is large. If the streamlines are closely spaced, it signifies rate of flow of liquid is large and if the distance between streamlines is large, it signifies rate of flow of liquid is small. It signifies rate of flow of liquid is small. Next, critical velocity. Critical velocity. When we increase the
velocity of a liquid, when we increase the velocity of a liquid, the velocity at which streamline flow changes to turbulent flow is called critical velocity. And experimentally, it was found that, critical velocity depends on coefficient of viscosity, density of the liquid, and diameter of the tube through which liquid is flowing. That is, सर आप ये क्या हुआ? तो इसकी डेफिनेशन व्हेन वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड क्या था आगे? Then at one particular velocity, streamline flow changes to turbulent flow and is called critical velocity. मतलब समझ आ गया ना? लैंग्वेज लिख लो, मेरे को यस पता सर, नहीं पहले क्या लिखाई थी. The velocity at which streamline flow changes to turbulent, वो critical velocity है. Critical velocity depends on coefficient of viscosity, density and diameter of the tube through which liquid is flowing. Derivation इसकी आप खुद ही कर दोगे, because dimension से करनी है, so eta raised to power a कर दो solve, because ये topic तो सबको अच्छे से आता. करो सॉल्व, क्या आता है आंसर? सर ईटा बाय रो डी क्यूब. क्यूब नहीं, a1 आएगा, b-1 आएगा, c-1 आएगा. फिर ए 1 आ रहा है, बी -1 आ रहा है, सी -3. c-1 आएगा, चेक करो. देखो आया सबका आंसर, a1 b-1 c-1. यस सर आ गया. हो गया सबका? Yes, sir.
सबसे पहले हम टाइम को ही कंपेयर कर लें तो a इज इक्वल्स टू 1, फिर है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, b is -1 minus a minus 3b plus c is equals to 1. So -1 minus 3 minus 1 plus c is equals to 1. So मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया. K eta by rho d. So you can write where K is constant of proportionality. Where K is constant of proportionality called Reynolds number. The same person who discovered ballpoint pen, Osborne Reynolds, fluid mechanics का बहुत बड़ा scientist था. K is constant of proportionality called Reynolds number. K is constant of proportionality called Reynolds number. It's a dimensionless constant. It's a dimensionless constant. और हम नॉर्मल लेंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर हम फ्लूइड फ्लो के लिए निकालें, अगर ये वैल्यू 2000 से कम आती है रेनॉल्ड्स नंबर की, यूनिट्स कोई नहीं है, डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी है, अगर इसकी वैल्यू 2000 से कम आती है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है. इसकी वैल्यू 3000 से ज्यादा आती है तो टर्बुलेंट होता है. 2000 और 3000 के बीच में ये स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है. सो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी फ्लूइड फ्लो के हिसाब से जहाँ पे इससे स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में चेंज करेगा. सो हम लेते हैं कि अगर 2000 से कम आ रही है इसकी वैल्यू, मतलब k को अगर मैं लिखूं तो k का फॉर्मूला क्या बनेगा? V rho d by nu. rho d v by eta. अगर ये वैल्यू 2000 से कम आई तो स्ट्रीमलाइन, 3000 से ज्यादा आई तो टर्बुलेंट, 2000 और 3000 के बीच में एक वैल्यू आएगी जहां पे स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट फ्लो में स्विच करेगा. सो यू कैन राइट K is constant of proportionality called Reynolds number. If Reynolds number is less than 2000, if Reynolds number is less than 2000, the flow of liquid is streamlined. If Reynolds number is less than 2000, the flow of liquid is streamlined. If Reynolds number is more than 3000, if Reynolds number is more than 3000, the flow is turbulent. And between 2000 and 3000, and between 2000 and 3000, it can be, between 2000 and 3000, it can be streamline or turbulent. It can be either streamline or turbulent. It can be either streamline or turbulent. इसका यूज कहाँ होता है? हम विस्कोसिटी को पढ़ते हैं, इसकी मेडिकल एप्लीकेशंस कहाँ हो सकती हैं और नॉन मेडिकल में कहाँ हो सकती हैं? मेडिकल एप्लीकेशन फ्लूइड मैकेनिक्स की क्या हो सकती है? डॉक्टर्स को, जिसने डॉक्टर बनना है उसको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? ब्लड फ्लो के लिए. बिकॉज ब्लड फ्लो तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा किसी भी डॉक्टर के लिए, किसी भी फील्ड का डॉक्टर है. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस में दे चेंज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. बिकॉज हमें अभी इसमें आगे जाके ना एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप. ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला है, R raised to power 4. सो बेसिकली ये सिग्निफाई करता है
कि अगर आपकी आर्टरीज 50% ब्लॉक हो गई, रेडियस उसका हाफ रह गया, रेडियस हाफ रहने का मतलब ये नहीं होगा कि ब्लड फ्लो हाफ होगा, वो 16 टाइम्स कम हो जाएगा, बिकॉज इट्स r raised to power 4। तो ब्लॉकेज से इसीलिए प्रॉब्लम आती है। अब प्रैक्टिकली सोच के देखो, ये कम हो गया, से मान लो मेरे हार्ट में ब्लॉकेज आई, आर कम हो गया, अफेक्टिव रेडियस जो है, बिकॉज इट्स नॉट, आर्टरी में ऐसे ब्लॉकेज तो नहीं आएगी ना कभी भी, कैसे बहुत प्रिसाइज ब्लॉकेज है यहाँ से कि अंदर सर्कल ही बच रहा है, इट कैन बी आर्बिट्रेरी शेप। बट अगर अफेक्टिव रेडियस कम हो रहा है तो ब्लड फ्लो कम हो रहा है। अब अगर मेरे को इसको कांस्टेंट रखना है, इसको थोड़ा बढ़ाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? या तो मैं न्यूमरेटर को बढ़ाऊं या डिनोमिनेटर को कम करूं। न्यूमरेटर बढ़ाने के लिए आर को तो मैं चेंज कर नहीं सकता, दैट इज इफेक्टिव रेडियस। मैं ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता था, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल। ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का मतलब है आप हर ऑर्गन पे लोड बढ़ा रहे हो, इट हैज टू डू मोर वर्क। ये ऑप्शन हमारे पास होती नहीं, पी को बढ़ाना। एल जो है वो लेंथ ऑफ आर्टरी है, इसको हम ऐसे तो चेंज कर नहीं सकते बिना सर्जरी के, कि मेडिसिन देके लेंथ ऑफ आर्टरी चेंज कर दी। तो हमारे पास यही ऑप्शन बचती है, ईटा को कम कर दो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कम कर दो ताकि ब्लड फ्लो इजी हो जाए। तो नॉर्मल जो मेडिकेशन होती है इसके लिए, दैट इज इकोस्प्रिन, डिस्प्रिन, वो इसी पर्पस के लिए होती है कि इट विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ईटा। नॉर्मल लैंग्वेज में डॉक्टर्स बोलते हैं खून पतला करने वाली दवाई, बट ईटा को कम कर रहे हैं। ईटा को कम कर देंगे तो ब्लड फ्लो थोड़ा इजीली हो जाएगा। दैट कैन बी एन ऑप्शन। सो इस तरह के फॉर्मूले मेडिकल एप्लीकेशंस में आते हैं। नॉन मेडिकल में मैकेनिकल इंजीनियर्स, wherever you have to determine the flow of fluid, be it पाइप या किसी में भी, तो आपको इस तरह के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, प्रेशर के कंसेप्ट की या विस्कोसिटी के कंसेप्ट की, कि जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स को आपने पढ़ना है। हर फील्ड में नहीं, बट मेनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक आएगा, दैट इज अबाउट रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब और बर्नौलीज थ्योरम। कि हम बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे, विच इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड मैकेनिक्स, और फिर उसके एप्लीकेशंस। अगर कल करते हैं हम तो वो इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा, कल करें या परसों करें, डिपेंडिंग किस दिन न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक दिन न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक दिन बर्नौलीज थ्योरम करेंगे। बर्नौलीज थ्योरम को हम लेते हैं, इट्स वन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन, 5 नंबर में हर स्कूल के फाइनल एग्जाम में आता है। सो इट इज वन ऑफ द आर्टिकल्स जो 5 नंबर आपके पक्के कर देगा फाइनल एग्जाम के। क्वेश्चन हमेशा होगा स्टेट एंड प्रूफ बर्नौलीज थ्योरम, राइट इट्स 2 एप्लीकेशंस। तो हम 3-4 एप्लीकेशंस करेंगे, कोई भी 2 ठीक से कर लेना, 2 एप्लीकेशंस पूछेंगे जो आपको आनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इतना पढ़ के देखना आज वाला लेक्चर। रिकॉर्डिंग में 9 बजे के बाद डालूंगा। हाँ ये जी, ट्यूशन सेंटर्स वगैरह खुलने की परमिशन मिली है? मतलब जैसे ट्यूशन स्कूल सेंटर्स की मिली है वैसे? खुलने की परमिशन मिली है, बट अभी टीचर्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि अभी वेट करेंगे थोड़े दिन और। रीजन बीइंग कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो होने नहीं ट्यूशन सेंटर्स पे कभी यस भी। सर। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप अगर 8-9 महीनों के बाद मिलोगे तो आप एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाओगे या एक दूसरे के साथ साथ जुड़ के नहीं बैठोगे। और एडमिनिस्ट्रेशन उसको किस वे में लेती है, बिकॉज अभी तो थोड़े अजीब से रूल हैं। स्कूल्स के लिए तो चल जाते हैं, जैसे ट्यूशन सेंटर्स के लिए उन्होंने बोला कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग होने चाहिए। वो नॉर्मली हर सेंटर के पास एक ही स्टेयरकेस होती है जहाँ से बच्चे चढ़ेंगे भी और उतरेंगे भी। सैनिटाइजेशन का कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा क्लास में भी मास्क पहन के बैठना, तो वो भी बच्चों से इम्प्लीमेंट कराना थोड़ा मुश्किल रहेगा कि सारा टाइम आप मास्क पहन के ही बैठे हो, बिकॉज डाउट पूछना है तो मास्क उतारना पड़ेगा, यस जो सर। आदमी को बात ही समझ नहीं आएगी। तो मतलब अभी सब वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे चल रहे हैं, और बहुत सारी कंडीशंस और भी हैं जो कोचिंग सेंटर्स मानने को तैयार नहीं है। आज 8:20 पे मीटिंग है, एक फेडरेशन है जिसको हम बोलते हैं कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके आज पंजाब चैप्टर की 8:20 पे वर्चुअल मीटिंग होएगी, उसमें काफी कुछ क्लियर होगा। जो कंडीशन से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है टीचर्स को, वो है कि अगर किसी भी बच्चे को कोविड होता है तो उसके इलाज का खर्चा वो टीचर देगा। तो टीचर्स कहते हैं कि अगर 4 बच्चों को होता है हम उसका खर्चा देते हैं, बट ये थोड़ी कि हमारे सेंटर से हुआ, वो कहीं और भी तो गया होगा।
और अगर वो 3 शिफ्ट जगह बात हो गई। तो टीचर्स अपना खर्चा बांटते देंगे कि ये बच्चा मेरे पास आता था, तेरे पास आता था, तो हम खर्चा डिवाइड करते हैं। स्कूल की कंसेंट में तो क्लियरली लिखा था कि स्कूल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर आपका बच्चा तो वो ट्यूशन आता सेंटर्स के अभी उस तरह का मिला नहीं ना, ट्यूशन सेंटर्स के लिए एसओपी भी नहीं इशू की है। चंडीगढ़ ने किए हैं, उस पर वो एग्री करते नहीं चंडीगढ़ के, बिकॉज कोचिंग सेंटर्स चंडीगढ़ में भी जितने हैं वो सब फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे हैं। तो उन्होंने कहा कि ग्राउंड फ्लोर वाले खोल लो, और हैं सारे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे, कि ग्राउंड फ्लोर पे तो शॉप्स खुली हुई हैं, नीचे शोरूम है, ऊपर सेंटर्स खुले हुए हैं। तो सब अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे चल रहे हैं, और सबको लग रहा है कि थोड़े दिन में और मतलब कम हो जाएगा तो शायद गवर्नमेंट थोड़ी और रिलैक्सेशन दे देगी, और सेफ भी तभी होगा। बिकॉज 12th के बच्चों से मेरी बात हुई थी, उनके तो पेरेंट्स ही एग्री नहीं करते, वो कहते हैं ऑनलाइन ठीक है, कि इसमें रिकॉर्डिंग भी देख लेते हैं बच्चे, ऑफलाइन में तो आप एक बार ही पढ़ा दोगे वो काम खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा कोई कुछ नहीं देख सकता। यस सर, बेनिफिट तो है सर इसमें। हाँ, वो कहते हैं ऑफलाइन में तो फिर डिफरेंट है, और 12th के बच्चे तो फिर भी हमारे साथ थोड़े से ओपन है, 11th वाले तो भी आज तक मैंने आप में से किसी की शक्ल भी नहीं देखी। तो आपको भी शुरू शुरू में क्वेश्चन पूछने में प्रॉब्लम होगी, ऐसे तो आप पूछ लेते हो कि कुछ पूछना है तो हम पूछ लेते हैं। तो देखते हैं जो होगा सबके साथ ही, अभी तो किसी टीचर ने डिसाइड नहीं किया कि क्या करना है।